slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. कमंडलू हाथ में लिया और जटा तथा वकलधारी बनकर वे कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चले गए। उनके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। उन्होंने देखा प्रायः मनुष्य पाप वृत्ति में लिप्त हो रहा है, दुष्ट बन रहा है। ब्राह्मण पखंडी जो जा रहे हैं और शूद्र संन्यास धारण कर रहे हैं। पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है, शिष्य अपने गुरु से वर करता है, सेवक स्वामी के और पुत्र पिता के घात में लगे हुए हैं। कलयुग में वेदों का विधान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। लोगों में प्रायः भगवान भी भक्ति दिखाई नहीं देती है और पुण्य क्षेत्र यानी धार्मिक स्थानों पर भी पाखंड बढ़ने लगता है। शूद्र लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। कली में गुणहीन मनुष्य दूसरों को गुण ना देखकर उनके दोष ही ग्रहण करते हैं और उसी की चर्चा भी करते रहते हैं। शत्रुओं में उलट फेर हो जाता है और सब राष्ट्रों में अकाल पड़ता है। कन्या योग समय में संतान उत्पत्ति नहीं कर पाती। काली में समय प्रायः लोग श्राद्ध कर्म का त्याग कर देते हैं, वैदिकों कर्मों को छोड़ देते हैं। इन सब को देखकर धर्म वर्ण को अत्यंत आश्चर्य हुआ और भय भी लगा। पाप से कुल की हानि होती देखकर वह आश्चर्य से चकित होकर दूसरे द्वीप में चले गए। सभी द्वीपों और लोकों में विवरण करते हुए बुद्धिमान धर्म वर्ण एक समय पितृग में गए।
वहाँ उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। वे दौड़ते रोते और गिरते पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरों को भी नीचे अंधकूप में गिरा हुआ देखा। उनको देखकर वह दयालु धर्मवर्ण पूछने लगे, आप कौन हैं? किस दुष्कर कर्म के प्रभाव से इस अंधकूप में पड़े हैं? तब पितरुओं ने कहा, हम श्री वत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई है, इसीलिए हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं और इसीलिए यहाँ हमें नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। संतानहीन दुरात्माओं का अंधकूप में पतन होता है और हमारे वंश में एक महायशस्वी पुरुष है जो धर्म वर्ण के नाम से विख्यात हैं, लेकिन वह विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता रहा। उसने गृहस्थ धर्म को नहीं स्वीकार किया। वह एक ही तंतु हमारे कुल में बचा हुआ था और उसकी भी आयु छीन हो जाने पर हम सभी लोग घोर अंधकूप में डूब जाएंगे, जहाँ से फिर बाहर निकलना असंभव होगा। इसीलिए कृपया करके आप पृथ्वी पर जाइए और धर्म वर्ण को समझाइए। हम दया के पात्र हैं। उनसे यह कहिए कि हमारी वंश रूपा दुर्वा को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। एक दिन हमारे सारे वंश का नाश हो जाएगा और तुम एक ही बच्चे हो। जब तुम मर जाओगे तो संतान परंपरा ना होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा। इसीलिए गृहस्थ धर्म का स्वीकार करो, संतान की वृद्धि करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की गति होगी। अगर एक भी पुत्र वैशाख माह की कार्तिक मास से हमारे उद्देश्य से स्नान, श्राद्ध और दान करेगा तो उससे हम लोगों की ऊर्ध्व गति हो जाएगी और नरक से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा धर्म वर्ण को समझाकर तुम उसे विरक्तिपूर्ण ब्रह्मचार्य आश्रम से निकालकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह देना। पितरों की यह सारी बात सुनकर धर्म वर्ण अत्यंत विस्मित हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं ही धर्म वर्ण नाम से विख्यात आपके वंश का दुराग्रही बालक हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद जी का वचन सुन लिया था कि कलयुग में कोई भी रसनेन्द्रिय और शीर्षेंद्रिय को दृष्टता पूर्वक संयम में नहीं रखता और इसीलिए मैं दुर्जनों की संगति से भयभीत हो गया और दूसरे द्वीपों में घूमता रहा। कलयुग के 3 चरण बीत गए हैं। अंतिम चरण में भी 3.5 भाग व्यतीत हो चुके हैं। मेरा जन्म व्यर्थ बीता है, लेकिन अब मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से और संसार से बाधा नहीं प्राप्त होगी। यह सुनकर पितरों को मन को शांति मिली और उन्होंने धर्म वर्ण से कहा, हे बेटा, तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतान उत्पत्ति के द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं, निरंतर श्री हरि का स्मरण करते हैं, सदाचार का पालन करते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। जिसके घर में शालिग्राम, शिला और महाभारत की पुस्तक हो उसे भी कलयुग बाधा नहीं देता। जो वैशाख मास के धर्मों को पालन करता है, माघ मास में स्नान में तत्पर रहता है और कार्तिक में दीपदान देता है, उसे भी कलयुग की बाधा नहीं प्राप्त होती। जिसके घर में बलि वैभव होता है, शुभकारी तुलसी स्थित होती है, उसके आंगन में उत्तम गाय रहती है, उसे भी कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। इसीलिए तुम शीघ्र पृथ्वी पर जाओ और हम सबका उपकार करो। सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर 30वीं तिथियां पुण्यदायिनी बताई गई है। एक एक तिथि में किया गया पुण्य कोटि गुण अधिक होता है और उससे भी जो वैशाख मास की अमावस्या तिथि है वह मनुष्यों की मोक्ष देने वाली देवताओं को और पितरों को प्रिय है। जो उस दिन पितरों को उद्देश्य से श्राद्ध करते हैं, जल से भरा हुआ घड़ा दान देते हैं, पिंड दान करते हैं, उन्हें अच्छे फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए
हमामते हुए शीघ्र जाओ, जब अमावस्या तो तब कुंभ सहित श्राद्ध और पिंड दान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रम लो, काम से संतुष्ट हो, उत्तम संतान पाकर मुनिवृत्ति में रहते हुए उसे सुख पूर्वक द्वीपांतरों में विचरण करो। इस प्रकार अपने पितरों के आदेश प्राप्त करने पर धर्म वर्ण मुनि शीघ्रता से भूलोक में गए। वहां मेष मासी में सूर्य को स्थित रहते हुए प्रातः काल में स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों को तर्पण किया। फिर कुंभ दान सहित पाप निवासक श्राद्ध करके उसके द्वारा पितरों को पुनरावृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की, और फिर स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पाप नाशनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। तो ये थी इस वैशाख मास की विशेष अमावस्या की कथा। अगर आपको आज की यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके पास सारे नए नोटिफिकेशन आते रहेंगे। राधे राधे।